like that you have to also present. Okay, good morning students. So today our topic for explanation is digestion in ruminants. Digestion in ruminants. Now what are ruminants? Ruminants are those animals which engulf the food as a whole without chewing it, and then they take back that food from their stomach while they are resting and chew it again and engulf it again. तो जो animals खाना खाते time, for example cow, buffalo, they just take in food while they are eating, and then after some time when they are resting, वो जो food उनके stomach में store हुआ है, it will come again into their mouth so that they can chew it properly. उसकी chewing करके दोबारा से saliva mix करके वो food फिर से उनकी stomach में for further digestion it will go in their stomach. Okay, so वो सब animals are called ruminants. Now what is the ingestion process that is taking place in ruminants? Beta, ruminants generally have a set of teeth which is different from the human beings. Ruminants have a properly strong incisors. They have cutting teeth, okay, and the canine teeth are absent in ruminants. Why? Because they are just cutting the plants and plant parts. That's why incisors are present in them, which are properly modified. Okay, it's very strong. और जो canine teeth है, which are tearing teeth, they are absent in cows and buffaloes in these ruminants, and then they have premolars and molars. They have premolars and molars. So they don't have canines in them. उनके अंदर सिर्फ incisor होते हैं in the front portion of their mouth. बड़े बड़े incisor teeth हमें दिखाई देते हैं. उसके बाद उनके अंदर होते हैं premolar at the back side of their mouth. बीच में premolar और molar के बीच में जो उनके mouth में gap होता है, वहाँ पे कोई भी teeth present नहीं होता है. गाय या फिर भैंस में आपने देखा भी होगा, सिर्फ आगे हमें दांत दिखाई देते हैं. पीछे वाले दांत उनके जबड़े के बहुत पीछे होते हैं, इसलिए हमें दिखाई नहीं देते, और बीच में गैप होता है. सो उनके पास सिर्फ वो 4 दांत नहीं है जो आगे होते हैं, उनके पास इंसिजर के साथ साथ पीछे वाले लोअर जो बोन में और अपर जो बोन में पीछे की साइड प्रीमोलर भी हैं और मोलर भी हैं, which help them for chewing of that food. Okay, after this chewing process, that food will go into their stomach. Now ruminants have a stomach structure different than the human beings. Human beings में तो क्या है, सिर्फ एक stomach है. On the left portion of our body है ना, ये जो हमारी cavity है, abdominal cavity, इसमें लेफ्ट साइड होता है हमारा स्टमक. बट काउस के अंदर बेटा जो स्टमक होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. काउ है 4 स्टमक, अगर आपने कभी सुना भी हो तो. रूमिनेंट्स के अंदर 4 स्टमक होते हैं. 4 स्टमक नहीं, 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं एक्चुअली उनके स्टमक के अंदर. जो उनकी एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं. अंडरस्टैंड? रूमेन, रेटिकुलम, ओमासम एंड एबोमासम. हर एक कंपार्टमेंट का अलग अलग कंट्रीब्यूशन होता है इन द डाइजेशन प्रोसेस इन दीज रूमिनेंट्स. क्लियर? नाउ लेट अस डिफाइन ऑल दीज थिंग्स. 4 compartment. Here is an image that showing the digestive tract of a cow here. Okay, so ये तो हो गया mouth. Clear? This is the mouth. And ये जो पाइप माउथ से अंदर जा रही है, दिस पाइप इज फूड पाइप लाइक ह्यूमन बींग्स, एसोफेगस. दिस इज माउथ. आफ्टर दैट जब फूड इंगल्फ करती है कोई भी काऊ, तो एसोफेगस से होके फूड जाता है into the first chamber, and the first chamber is our rumen. और ये फर्स्ट चैम्बर कौन सा है? ये जो सबसे बड़ा चैम्बर दिखाई दे रहा है यहां से, आई विल हाईलाइट दिस चैम्बर. दिस फुल चैम्बर इज आवर rumen. So this is the biggest portion of the digestive tract of any cow, है ना? So rumen is the biggest compartment.
इन एनी काउ। जो स्टमक का सबसे बिगेस्ट कंपार्टमेंट है रूमेन है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोरिंग स्पेस और स्टोर, यू कैन से स्टोर फॉर द स्टोरिंग ऑफ फूड इन द स्टमक। सो कहाँ पे जाके फूड स्टोर होता है काउस के अंदर? इन दिस रूमेन पोर्शन। ओके, ये जो येलो हाईलाइटेड पोर्शन है, क्लियर? आफ्टर that our second compartment is reticulum. What is the second one? Let me mark here first one. First one is this green color. Okay, now second one is our reticulum. This is the second portion, and actually reticulum is a honeycomb like structure. जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं ना। तो जो रेटिकुलम है, दिस वन पोर्शन, दिस वन, ये फूड पाइप के बिल्कुल नीचे की साइड, नीचे की तरफ लटका हुआ जो पोर्शन है, दिस इज रेटिकुलम, सेकेंड पोर्शन। ओके, लेट मी मार्क हेयर सेकेंड। This is our second portion, which is our reticulum. अब यहाँ से रेटिकुलम से जो कट बनेगी वो कट दोबारा से जाएगी काउ के माउथ में फॉर फर्दर रूमिनेशन, दोबारा से च्यूइंग के लिए, अंडरस्टैंड? और दोबारा से च्यूइंग होके कट वापस से कहाँ आएगी? इसी सेकेंड चैम्बर में, रेटिकुलम में। आफ्टर दैट थर्ड कंपार्टमेंट इज आवर ओमासम। Where is this omasum present? Let me take orange color. Okay, omasum is this circular shape, this one. ये जो इस नीचे वाले पोर्शन के पीछे, ये स्फेरिकल होता है शेप में, स्फेरिकल, स्फीयर के जैसे, ऐसे जैसे बॉल नहीं होती है, इस टाइप का होता है। और दिस इज आवर थर्ड पोर्शन, ओमासम। क्लियर? अब व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओमासम? ओमासम होता है जैसे बुक, आपकी बुक होती है ना, एक पेज के नीचे एक पेज, नीचे और पेजेस, बहुत सारे पेजेस ऐसे स्टैक में होते हैं, बंडल की तरह होते हैं। ऐसे ही ओमासम के अंदर बेटा टिश्यूज की ऐसे लेयरिंग होती है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, लाइक दिस। टिश्यूज की ऐसे फ्लैप्स होती है एक दूसरे के ऊपर, क्लियर, स्टैक बनी हुई होती है। और ये टिश्यूज की फ्लैप के अंदर जब फूड, डाइजेस्टेड फूड अंदर आता है तो उसमें से वाटर प्लस सम जो न्यूट्रिएंट्स हैं सिंपल फॉर्म में जो डाइजेस्ट हो चुके हैं, दोज न्यूट्रिएंट्स गेट एब्जॉर्ब्ड बाय दीज फ्लैप्स, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। क्लियर? अब ओमासम के बाद, थर्ड कंपार्टमेंट के बाद जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो जाएगा हमारे फोर्थ कंपार्टमेंट में, एंड दैट फोर्थ कंपार्टमेंट इज आवर एबोमासम। क्लियर? एंड वेयर इज दिस, वेयर इज दिस फोर्थ कंपार्टमेंट? हेयर, दिस वन पोर्शन, जो ओमासम के नीचे हमें ऐसे इलोंगेटेड पोर्शन दिखाई दे रहा ना, दिस इज आवर abomasum, and this abomasum is also known as true stomach, fourth one. अब एबोमासम को ट्रू स्टमक क्यों कहा? बिकॉज बेटा काउ के अंदर जो एबोमासम है ना, इसकी जो फंक्शनिंग है और स्ट्रक्चर है, इट इज जस्ट लाइक द स्टमक ऑफ ह्यूमन बींग्स। हमारी जो स्टमक की जो फंक्शनिंग और स्ट्रक्चर है ना, वो मिलती है विद द एबोमासम पार्ट ऑफ काउ स्टमक, इसीलिए इस एबोमासम को ट्रू स्टमक बोला है। इस एबोमासम की जो बाहर वाली लाइनिंग है, वॉल्स हैं, ये एक ग्लैंड की तरह काम करती है। ग्लैंड मींस जो सीक्रेट करेगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस एंजाइम्स फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, अंडरस्टैंड? तो एंजाइम्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में डाइजेशन कौन से पार्ट में होगा? इन दिस फोर्थ पोर्शन, एबोमासम, अंडरस्टैंड? Clear? So what is the functioning of these four parts? Number one, rumen में क्या होगा? स्टोरिंग होगी, बस जो इनगल्फ करेगी काउ, जो फूड इनगल्फ करेगी उसकी स्टोरेज होगी इनटू दिस फर्स्ट पोर्शन। ओके, और यहाँ पे स्टोर होने के साथ साथ कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं, बैक्टीरियाज। Some bacterias are also present.
For example बेटा सेलेनोमोनास, okay, for example that rumenococcus, for example methanobacter, ये सब जो बैक्टीरियाज हैं इनका क्या काम है बेटा, these bacterias help in fermentation ऑफ सेलुलोज। जो ग्रीन प्लांट पार्ट खाते हैं, प्लांट के जितने भी पार्ट्स खाते हैं उनके अंदर मैक्सिमम न्यूट्रिएंट कौन सा प्रेजेंट होता है, सेलुलोज, है ना। तो वो जो सेलुलोज है उसकी डाइजेशन करवाता है थ्रू द फर्मेंटेशन प्रोसेस दीज बैक्टीरियाज, ओके। सारे सेलुलोज की डाइजेशन नहीं होती, सिर्फ कुछ % सेलुलोज की फर्मेंटेशन होती है और वो सेलुलोज कन्वर्ट हो जाता है वोलेटाइल फैटी एसिड्स के अंदर, ओके। जितना भी फूड लिया उसमें से कुछ % सेलुलोज की डाइजेशन यहाँ पे बाय द हेल्प ऑफ दीज बैक्टीरियाज होगी इन रूमेन फर्स्ट पोर्शन, और जो जितना भी खाना खाया उसकी स्टोरेज भी यही होगी इस फर्स्ट पोर्शन के अंदर, ओके। और फर्मेंटेशन के बाद जो प्लांट प्रोडक्ट फूड में होगा वो प्लांट प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा इनटू वोलेटाइल फैटी एसिड VFAs, और ये वोलेटाइल फैटी एसिड्स क्या होगा फिर, इनको एब्जॉर्ब कर लेगी रूमेन की जो लाइनिंग है ना, रूमेन की वॉल्स, वो वॉल्स इस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेगी, सकअप कर लेगी, और फिर बॉडी के अंदर इट विल बी ट्रांसफर्ड फॉर फर्दर एनर्जी फॉर्मेशन, है ना, इट विल बी transferred to the body after that. Now after rumen the food will go into reticulum. अब रेटिकुलम में क्या होगा, इट इज अ हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर, आई टोल्ड यू, है ना। हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर है, इट मींस इट इज हैविंग अ लॉट ऑफ कंपार्टमेंट्स, जैसे हनीकॉम में अलग अलग डिब्बे बने होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं, ऐसे ही बेटा रेटिकुलम में अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, ओके। एंड दीज कंपार्टमेंट्स segregate the food that comes in it. Segregation means separation, okay। अब जो partially digested food rumen से रेटिकुलम में आएगा वो फूड इन कंपार्टमेंट्स के अंदर फिलअप हो जाएगा। अब इन कंपार्टमेंट्स के अंदर बेटा जो फाइन फूड है, in our second portion food will be segregated or separated in two types, fine and big food, okay। फाइन फूड जो है जैसे वाटर जिसमें मिक्स है और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो फाइन फूड इट विल बी सेंट टू द थर्ड पोर्शन ओमासम, बट द बिग फूड पार्टिकल्स उनको छोटे छोटे लम्प्स में कन्वर्ट करके, यहाँ पे लम्प्स में तो अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगे बिकॉज देयर आर सम स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट्स ना, उन कंपार्टमेंट्स में से बेटा वो जो कर्ड फॉर्म होगा यहाँ पे पार्शियली डाइजेस्टेड फूड वो वापिस आएगा थ्रू द ईसोफेगस इनटू द माउथ ऑफ दैट एनिमल, और यहाँ पे फिर प्रोसेस होगी प्रॉपर च्यूइंग की और स्लाइवा मिक्स हो जाएगा। स्लाइवा मिक्स होने के बाद पेस्ट बन जाएगा उस फूड का, है ना, एंड दैट पेस्ट लाइक फूड विल गो बैक टू द स्टमक, ओके, गो बैक टू द रूमेन एंड देन टू द रेटिकुलम। अब यहाँ से रेटिकुलम से वो जो बिग पार्टिकल था रूमिनेशन के बाद फाइन फूड में कन्वर्ट हो गया। अब ये फाइन फूड रेटिकुलम से कहाँ जाएगा, थर्ड पोर्शन में ओमासम में। एंड आई टोल्ड यू द स्ट्रक्चर ऑफ ओमासम। ओमासम का क्या स्ट्रक्चर था, ऐसे फ्लैप्स थी, टिश्यूज की फ्लैप्स थी, है ना, बंडल थे टिश्यूज के लाइक दैट। जब ओमासम के अंदर वो फूड और कट चूड कट जाएगा पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, तो बेटा इन फ्लैप्स के थ्रू फिल्टर होगा और इन फ्लैप्स में क्या होगा, जो एक्स्ट्रा वाटर प्लस जो फाइन न्यूट्रिएंट्स है, जो न्यूट्रिएंट्स सिंपल फॉर्म में है वो न्यूट्रिएंट्स यहाँ से ये जो फ्लैप्स हैं ओमासम की, इन फ्लैप्स के टिश्यूज के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ओके, एंड दीज टिश्यूज विल सेंड दीज न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर इनटू द फुल बॉडी ऑफ दैट रूमिनेंट,
क्लियर, बॉडी में भेज देगा यहाँ से। अब इसके अलावा वाटर और न्यूट्रिएंट्स के अलावा पार्शियली डाइजेस्टेड फूड भी था यहाँ, जो फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ था वो फूड भी था ना इसमें ओमासम में। क्लियर, स्टॉप टॉकिंग। वो फूड बेटा कहाँ जाएगा फिर, जो पार्शियली डाइजेस्टेड, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ था, वो फूड जाएगा हमारे फोर्थ चैम्बर के अंदर। व्हाट इज द नेम ऑफ फोर्थ चैम्बर? abomasum. Okay, and it is also the true stomach, true stomach of cow. Why it is called true stomach? Because it is just like normal stomach of human being. इस abomasum की जो लाइनिंग है वहां पे ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जो सीक्रेट करेंगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सम एंजाइम्स, और इन एंजाइम्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में बेटा जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड था उसकी प्रॉपर डाइजेशन होती है, लाइक द डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स इन स्टमक। ओके, और वहां पे मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपल फूड मटेरियल। Okay, and after that fourth compartment, where does that food go? Partially digested food, it will go into our small intestine जो यहाँ से start हो रही है। Clear? And small intestine is now divided into 3 portions. Small intestine 3 portions में divided होती है, like human beings है ना, duodenum, jejunum and ileum. Duodenum, jejunum and ileum. So the first portion here, ये जो फर्स्ट पोर्शन यहाँ से यहाँ तक हमें दिखाई दे रहा स्मॉल इंटेस्टाइन का, दिस इज duodenum. इसके बाद ये जो कुछ फोल्ड्स आने लगी ना, ऐसे कर्ल टाइप में होने लगी दिस स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज आवर jejunum, second portion of our small intestine. Okay, जहां से कोइलिंग स्टार्ट हुई है, यहाँ तक तो स्मॉल इंटेस्टाइन duodenum में क्या थी, स्ट्रेट ही थी लगभग है ना, कोइलिंग नहीं हुई थी। ये जो सेकंड पोर्शन है ये कोइल्ड है ना, दिस इज आवर jejunum. आफ्टर दैट थर्ड पोर्शन ऑफ आवर स्मॉल इंटेस्टाइन इज ileum, ileum. इलियम क्या है? ये हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन का, एंड द लास्ट पोर्शन ऑफ आवर स्मॉल इंटेस्टाइन, आवर ऑल्सो एंड रूमिनेंट्स ऑल्सो। ओके, इस इलियम में क्या होगा, हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होगी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की फंक्शनिंग क्या होती है? फाइनल डाइजेशन है ना, तो यहाँ पे इस स्मॉल इंटेस्टाइन के पोर्शन में बेटा इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होते हैं फ्रॉम द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, लाइक ह्यूमन बींग्स में भी क्या इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होता है, ऐसे ही रूमिनेंट्स में भी इंटेस्टाइनल जूस will be secreted, and this juice will have some enzymes which will help in final digestion process. अगर कुछ undigested material बच गया है, then that material will be finally digested here and it will be converted into simple form, and that simple form material or digested food will be absorbed by the walls of intestine. By which structure? Villi, by the surface of small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस पे फिंगर लाइक मिलियंस ऑफ प्रोजेक्शंस होती हैं विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज डाइजेस्टेड सिंपल फॉर्म न्यूट्रिएंट्स। क्लियर? और ये न्यूट्रिएंट फिर मिक्स हो जाएगा ब्लड के अंदर एंड देन इट विल बी कैरिड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, है ना, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा दिस डाइजेस्टेड फूड का इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। बचेगा क्या? व्हाट विल बी लेफ्ट बिहाइंड? अनडाइजेस्टेड फूड, वेस्ट फूड। सो वेस्ट फूड then
will be transferred to our next portion. What is the next portion of alimentary canal? Large intestine, है ना. तो ये जो ब्राउन कलर की हमें इंटेस्टाइन टाइप दिखाई दे रही है, दिस ब्राउन कलर्ड इंटेस्टाइन इज आवर लार्ज इंटेस्टाइन. स्टार्ट फ्रॉम हेयर, दिस वन, एंड दिस इज द एनस, जहां से वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे. क्लियर. सो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के जॉइनिंग पॉइंट पे आपको यहाँ पे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा. पाउच लाइक स्ट्रक्चर. What is the functioning of it and what is it called? Small intestine और large intestine के joining point पे there is a bag like structure and it is called cecum. Okay, and what is the function of this cecum? बेटा, large intestine में undigested food जाने से पहले it will be stored into that cecum. Okay, and from here the undigested food will move into our small intestine, and whenever the brain will give the signal to excrete out the waste in that cow's body, then it will be excreted out of the body, and here our digestion process ends. Okay, main part is that stomach is divided into 4 portion in these ruminants, but human beings have only one stomach, that is similar to abomasum. Okay, बाकी जो 3 parts है उनके different functioning है in ruminants. Rumen help in storage and do the fermentation, bacterial fermentation also of some particles of food, and then reticulum form the cud hair, and then omasum absorb the extra water and nutrients, and then finally digestion, true digestion will start, will occur in our abomasum part. Okay, after that small intestine and large intestine. This is the full digestive process. Thank you. अब जो जो बोला था एक एक को पकड़ के ना, इसी चैप्टर